چنانچہ ہندوستان میں بھی، اور معلوم ہوتا کہ وہ رسول وہاں بھیجے گئے تھے، اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا ہے، وہ تلپٹ ہوئی ہیں وہ بستیاں، وہ جو ہے بڑے بڑے ٹیلے ہیں جن کو اب کھدائی کر رہے ہیں تو نیچے سے بستیاں برآمد ہو رہی ہیں۔ تو مہانوح سے وہ نوح بن گیا ہے، اور جو ان کی منو سمرتی ہے وہ در حقیقت حضرت نوح کی وہ شریعت تھی جو انہوں نے اپنی قوم کو دی تھی کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوچھتے تھے۔ رام میں اچھے منشیہ تھے، آپ اگر کہتے ہیں کہ وہ اوتار ہے، او انتر می سینڈ فرام آلمائٹی گاڈ۔ مولانا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شری رام چندر جی کے بارے میں اور شری کرشن جی کے بارے میں، دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ میں جب ان کی تعلیمات دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی تھے۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو الگ الگ دور میں اور الگ الگ علاقوں میں انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ہیومن ہسٹری میں ایسی کوئی سویلائزیشن نہیں کہ جہاں اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہ کیا ہو، لیکن قرآن مجید میں صرف 26 پیغمبروں کا ہی نام موجود ہے۔ لہٰذا باقی کے نبی کہاں، کب اور کس دور میں آئے یہ ہم نہیں جانتے۔ قرآن کے علاوہ اگر دوسرے آسمانی کتابیں مثلاً توریت اور انجیل میں آئے نبیوں کے تعداد کو بھی ملا لیا جائے تو ہم 100 سے زیادہ نبیوں کے ناموں کو بھی اکٹھا نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کی قدیم سرزمین جس کی 1000 سالہ تاریخ میں کئی عظیم تہذیبیں موجود تھیں، یہ سرزمین بھی پیغمبروں سے استثناء نہیں ہے، بلکہ ہندوستان اور ابراہیمی مذاہب کا بہت گہرا اور پرانا تعلق ہے۔ توریت، انجیل اور ارشاد نبوی میں جگہ بجگہ ہندوستان کا ذکر ملتا ہے۔ یوں تو ہندوستان کی تاریخ عظیم طوفان نوح کے بعد سے شروع ہوتی ہے، لیکن آثار قدیمہ کی مانیں تو یہ سرزمین انسانیت کی جنم بھومی اور کرۂ ارض پر انسانی تہذیب کا نقطۂ آغاز تھا۔ یہاں 7000 قبل از مسیح سے پہلے انسانوں کی آمد کا سراغ ملتا ہے۔ تبری کے مطابق نوح علیہ السلام کے پوتے ہند کی نسبت سے اسے ہندوستان کہا گیا۔ روایتوں کے مطابق حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے اسی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ مورخین اس جگہ کو سراندیپ پہاڑ قرار دیتے ہیں جو آج سری لنکا میں ہے۔ اس پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام ایڈمز پیک یعنی کوہ آدم ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر انسانی قدموں سے مشابہ ایک نشان ہے جس کی لمبائی 67 انچ اور چوڑائی 18 انچ ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ اسے سری پدا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے مقدس قدم کا نشان کہتے ہیں۔ سراندیپ اور آدم علیہ السلام کے اس فٹ پرنٹ کا پہلا تذکرہ مشہور مسلم ٹریولر ابن بطوطہ نے سب سے پہلے اپنی تحریروں میں کی تھی اور لکھا تھا کہ اس قدم کے نشان کو دریافت کرنے والے ایک تابعین تھے۔ اس زمانے میں اس جگہ کی حفاظت خراسانی مسلمان اور مسلم صوفیہ اکرام کیا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کا ہندوستان کی سرزمین میں اترنے کی ایک اور دلیل پل آدم ہے جسے ایڈمز برج کہا جاتا ہے۔ یہ چونا پتھر کا ایک سلسلہ یا قطار ہے جو ہندوستان کو سری لنکا سے جوڑتا ہے۔ ہندو مت کے مطابق اسے رام سیتو کہتے ہیں کیونکہ رامائن میں یہ بتایا گیا ہے کہ شری رام چندر نے اسے بنایا تھا، جبکہ اسرائیلی اور اسلامی روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اسی پل کے ذریعہ ہندوستان پہنچے تھے۔ اگر ہندو مت کی کتابوں کی بات کریں تو وید میں سویمبھو منو کو دنیا کا پہلا انسان کہا گیا ہے۔ سویم کا مطلب جو بن ماں باپ کے خود پیدا کیا گیا ہو، اس لیے اسے سویمبھو منو کہا گیا، جنہیں ہندوستان میں اتارا گیا تھا۔ منو کے بائیں حصے سے اس کی بیوی کو پیدا کیا گیا جس کا نام شتروپا تھا، لہذا سویمبھو منو اور شتروپا ابراہیمی مذاہب کے آدم و حوا علیہ السلام ہیں۔ منو اور شتروپا کی اولادوں سے ہی دنیا میں انسانوں کی آبادی بڑھی۔ اسی منو سے مانو اور منوشیہ لفظ نکلا جو سنسکرت زبان میں انسان یا آدمی کا ترجمہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انگریزی زبان کا لفظ مین بھی اسی منو سے نکلا ہے۔ ہندو اسکرپچرز کہتی ہیں کہ سویمبھو منو کے 7ویں نسل سے مہانو پیدا ہوا۔ مہانو کو وشنو بھگوان نے یہ بتایا کہ پوری دھرتی ایک عظیم سیلاب سے ڈوب جائے گی، اس مہا جل پرلے سے بچنے کے لیے تم ایک کشتی تیار کرو۔ لہذا منو نے کشتی بنایا اور اس میں تمام رشیوں کو لے کر سوار ہو گیا۔ جب جل پرلے آیا تو مہانو کی اس کشتی کو ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پر باندھ دیا گیا اور سیلاب ختم ہونے پر
महानू अपने साथियों के साथ नीचे उतरे और उन्हीं लोगों से ये दुनिया आगे बढ़ी। तौरेत, इंजील और कुरान मजीद में नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा महानू के इस किस्से से काफ़ी हद तक मिलता जुलता नजर आता है। लिहाजा मशहूर फ्रेंच रिसर्चर एब्बे ड्यूबॉइस अपनी किताब हिंदू मैनर्स एंड सेरेमनीज में लिखते हैं कि अजीम जल प्रलय से बच निकलने वाला महानू इब्राहिमी मज़ाहिब का नूहा है। ये ऐन मुमकिन है कि नूह अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान की तरफ ही मबूस किया गया होगा, और जब हिंदुस्तान के लोगों में गुनाह, सरकशी और कुफ्र आम हो गई तो जल प्रलय आया। एक गौरतलब बात यह है कि जेनेसिस और यहूदियों के बुक ऑफ इनॉक के मुताबिक जब वॉचर्स ने इंसानों के साथ जिना किया तो अजीबो गरीब किस्म के मखलूक पैदा होने लगे थे, और इस क्रॉस ब्रीडिंग से इंसानियत ख़त्म होने के कगार पर पहुंच गई थी। लिहाजा ज़मीन को इन अजीबो गरीब मखलूक यानी निफिलियम से पाक करने के लिए अजीम सैलाब आया था, जिसमें वो तमाम मखलूक सैलाब में डूब गए। अगर गौर करें तो हिंदू मज़हब की तारीख में भी दानव, राक्षसों और असुर का कसरत से जिक्र मिलता है, जो दरअसल वही निफिलियम्स हैं जो क्रॉस ब्रीडिंग से हिंदुस्तान की सरजमीन में फैल चुके थे। लिहाजा महानू ने कश्ती में इंसानों को सवार किया और खुदा ने उन राक्षसों को तूफान और सैलाब में हलाक कर दिया था। दक्किनी हिंदुस्तान के मजहबी सहीफों और जैन मजहब की तारीखी रिकॉर्ड्स की स्टडी करें तो हिंदुस्तान की एक दिलचस्प तारीख सामने आती है, जिसके मुताबिक लगभग 3300 कबल मसीह में जल प्रलय के बाद जब महानू यानी नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से उतरे तो आपके 3 बेटों में इस ज़मीन को बांट दिया गया। हाम को अफ्रीका का हिस्सा मिला, याफिस को यूरोप और रूस का हिस्सा मिला, जबकि साम को अरब और मिडिल ईस्ट का मालिक बना दिया गया। लेकिन यहूदियों के बुक ऑफ जुबलीस के मुताबिक साम यानी शेम को मशरिकी वस्ता, लिबनान और बाबिल के साथ साथ हिंदुस्तान भी मिला था। लिहाजा शेम अपनी औलादों के साथ हिजरत करके हिंदुस्तान के उत्तरी इलाके में आ गए, जहां उन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर बसाए। यहाँ के लोग साम को भरत कहते थे। चुनांचा हिंदू मत के राजा भरत ही साम हैं, जिनके नाम पर हिंदुस्तान को कदीम तारीख में भारत कहा जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोगों को भी हिस्टोरियंस ने बाहर से आने वाले आर्यन करार दिया है। लिहाजा आर्यन थ्योरी से भी भरत या शेम की इस कहानी को सपोर्ट मिलती है। इसलिए शेम की आबाद की हुई इस जमीन को आर्यवर्त भी कहा गया। भरत जो कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, वो सच्चा वाहिद खुदा पर यकीन रखता था, जो ज़ात में अकेला है और जिसका अर्श पानी पर बना था। चूंकि संस्कृत में पानी को नारा कहा जाता है, इसलिए उसने इस खुदा को नारायण कहा। भरत की औलादों ने नूह के खुदा यानी नारायण की इबादत की, लेकिन राजा भरत की मौत के बाद भारत के कई दावेदार खड़े हुए और हिंदुस्तान में कुरुक्षेत्र की अजीम जंग हुई। उमूमन हिंदू मजहब को एक गैर इब्राहिमी मजहब माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों के नज़दीक ये भी एक इब्राहिमी मजहब है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हिंदुओं के सबसे बड़े देवता ब्रह्मा में हद दर्जा मुमासलत पाई गई है। कहते हैं कि वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही थे जिन्हें हिंदुस्तान के लोगों ने ब्रह्मा बना दिया। दरअसल इब्राहिम अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है जो संस्कृत में आकर ब्रह्मा बन गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती के खिलाफ तबलीग की और अल्लाह की वहदानियत का प्रचार किया था। वहीं ब्रह्मा भी हिंदू मत के वाहिद देवता है जिनकी पूजा करना ममनू है। लिहाजा मुमकिन है कि किनान और मिस्र के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आपकी औलादें आखिरी उम्र में हिंदुस्तान आई थी, और आपके वफात के बाद हिंदुस्तान के लोगों ने इनकी तस्वीरें और मूर्तियां बनाकर शिर्क में मुब्तला हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कुछ सहीफे भी नाजिल हुए थे, जिनका जिक्र अलहामी किताबों और कुरान मजीद में मिलता है, लेकिन आज वो सहीफे कहाँ हैं हम नहीं जानते। मुमकिन है कि हिंदुओं की मुकद्दस पुराण और मनुस्मृति वही सहीफे हों। हिंदुस्तान की इस 3000 साल पुराने तहजीब और कौम की तरफ बहुत सारे पैगंबर और नबियों को मबूस किया गया था, लेकिन आज वो पैगंबर तारीख के गुमनाम नबी हैं, जिनके मुतालिक न कोई सबूत मिलता है, ना उनकी कोई किताब अपनी असली हालत में मौजूद है, और ना ही उनकी शरीयत बाकी बची। लेकिन बाज़ रिसर्चर्स और मुस्लिम स्कॉलर्स का मानना है
कि जैसा कि गुज़श्ता उम्मतों के लोगों ने अपने रसूलों के जाने के बाद उनकी पूजा शुरू कर दी थी, बिल्कुल उसी तरह हिंदुओं ने अपने नबियों की तारीख को मस्ख करके उन्हें देवता बना लिया और उनकी पूजा शुरू कर दी। उन्हीं तारीखी शख्सियत में एक नाम श्री राम का है। हिंदुओं के मुकद्दस किताब रामायण के मुताबिक राजा भरत यानी शेम की नस्ल से एक शख्स राजा दशरथ था, जो शुमाली हिंद के रियासत अयोध्या पर हुकूमत करता था। दशरथ के 4 बेटों में सबसे बड़े राम थे। राम अपनी नेक दिली, दिलेरी और इखलाक के सबब रियाया में बहुत दिल अजीज थे। राम बचपन से ही शांत मिजाज के बहादुर मर्द थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उसूलों और इंसाफ व सच्चाई को हमेशा अव्वलीन मकाम दिया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। राम ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में बहुत से राक्षसों को कत्ल किया और ज़मीन को फितना फसाद से पाक किया। रामायण के मुताबिक रानी केकई ने साजिश करके अपने बेटे भरत को राजा बनवाया और राम को 14 साल का वनवास हुआ। लिहाजा राम अपनी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जंगल चले गए, लेकिन वहां लंका के राजा रावण ने सीता को अगवा कर लिया। राम ने बांदरों की फौज की मदद से लंका पर हमला कर दिया। उन्होंने दिलेरी के साथ रावण को शिकस्त दी और उसे कत्ल किया। राम सीता को वापस लेकर अयोध्या आए तो पूरे मुल्क में चिरागां किया गया और खुशियां मनाई गई। राम को हिंदुस्तानी तहजीब की इलामत के तौर पर पेश किया जाता है और राम की कहानी इतनी मशहूर है कि हिंदुस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी ये किस्सा सदियों से मशहूर है। श्री राम की अजीम शख्सियत, बेमिसाल दिलेरी, सदाकत और सच्चाई उन्हें हिंदुस्तान का अजीमुल मर्तबा शख्सियत बना देती है। उर्दू के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़मों में श्री राम से अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार कुछ इन अल्फाज में किया है कि लबरेज़ है शराब हकीकत से जाम हिंद, सब फ़लसफ़ी हैं ख़ित्ता मग़रिब के राम हिंद, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। मुमकिन है कि श्री राम अल्लाह के नबी हों जिन्हें हिंदुस्तान के लोगों की तरफ भेजा गया था, लेकिन बाद में हिंदुओं ने उनकी मूर्तियां बनाकर उन्हें ही भगवान का दर्जा दे दिया। जैसा कि हिंदुओं के अकीदा के मुताबिक वो राम को खुदा के अवतार ही मानते हैं। अवतार का नज़रिया संस्कृत में वही है जो इस्लाम में पैगंबर और नबियों का है, यानी खुदा का पैगाम लोगों तक लाने वाला। इसी तरह बर्रे सगीर के कई उलमा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को भी नबी करार देते हैं और ये भी गुमान किया जाता है कि कुरान मजीद में जिन जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, दरअसल वो कपिलवस्तु के शहजादे गौतम बुद्ध की तरफ इशारा है, जिन्होंने हिंदुस्तान में तौहीद के फ़लसफ़े की तबलीग की थी, मगर बाद में बुद्ध मज़हब के लोगों ने उनकी तालीमात में फेर बदल कर दी। इस तरह हिंदू देवता श्री कृष्ण को भी कई जदीद माहरीन नबी होने का ख्याल करते हैं। श्री कृष्ण के नबी होने की दलील में मुहक्किकीन उस रिवायत को पेश करते हैं जिसमें सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरे मुल्कों के अंबिया कराम के निस्बत सवाल किया, तो हुजूर ने फरमाया कि हर एक मुल्क में खुदा के नबी गुजरे हैं और हिंद में एक नबी गुजरा है जो स्याह रंग के थे और उनका नाम काहिना यानी कन्हैया था। यानी इस हदीस में श्री कृष्ण की तरफ इशारा है जिनका असल नाम कान्हा या कन्हैया था। इस रिवायत को सिर्फ इमाम दिलमी ने तारीख हमदान में लिखा है। इसकी सनद नामालूम और कमज़ोर है, लेकिन ज़हबी और इब्ने अरबी ने भी अपनी तहरीरों में इस रिवायत को नकल किया है। बहरहाल इस रिवायत को कमज़ोर मान भी लिया जाए तो कन्हैया नबी और हिंद का जिक्र आना इस बात की तरफ इशारा करती है कि हिंद की सरजमीन की तरफ कोई नबी ज़रूर मबूस हुए होंगे। मुजद्दद अलफ़सानी ने मुकाशफा में इस बात का इंकशाफ किया है कि हिंदुस्तान के शहर अयोध्या और रियासत पंजाब में कई अंबिया कराम की कब्रें मौजूद हैं जिन्हें यहाँ के लोगों की हिदायत के लिए मबूस किया गया था। उन पैगंबरों की कुल तादाद 13 है जो नूह अलैहिस्सलाम के बाद हिंद की सरजमीन की तरफ आए थे। तिब्बती लामा की किताबों में भी उन नबियों का तज़किरा हुआ है जो हिंदुस्तान की तरफ भेजे गए थे। इसी तरह बाज़ मुहक्किकीन हंज़ला बिन सुफ़वान अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक ये ख्याल करते हैं कि उन्हें हिंदुस्तान के एक कौम असहाबुल रस की तरफ भेजा गया था जो दरअसल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग थे और जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक कर शहीद कर दिया।
हिंदू मज़हब के सहीफ़ों में तौहीद व आखिरत का पैगाम आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है, मगर ज़्यादातर पैगामात को बिगाड़ कर हिंदू पंडितों ने अपने अवाम को बुत परस्ती में लगा रखा है और हिंदू करोड़ों देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर उनकी इबादत में लगे हैं। अलबत्ता ये बात वसूख से नहीं कहा जा सकता कि राम, कृष्ण या बुद्ध वाकई अल्लाह के नबी थे, लेकिन वैद और पुराणों के तालीमात से यही मालूम होता है कि बिलाशुबह ये किताबें आसमानी हैं जिनमें रद्द बदल कर दी गई हैं, और अगर किताबें मौजूद हैं तो हिंदू जिन्हें देवता मानकर पूजा करते हैं उन्हीं हस्तियों में कोई अल्लाह के नबी या पैगंबर थे जिनकी तारीख को पंडितों और ब्राह्मणों ने बदल दिया। हिंदुस्तान की सरजमीन का असल मजहब इस्लाम ही है, जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल को खो चुका है। आज ये उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह का पैगाम इन लोगों तक पहुँचाएँ और उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में बताएं